Hello, good evening. On this Easter Friday, we have something for you from the Gad of modernity of Indian art from Shantiniketan. I'm really delighted to be here, not only just as the art consultant and curator for the Habitat Center, which is one of the hats I wear, but right now as the curator for Art Magnum for this particular show of Haren Thakur, A Moment in Modernity. Before I open the evening or the Vartalap, or as they call it, Chai Pe Charcha, between Haren Thakur, an artist of an older generation, with another artist whose work is more lens-based, younger artist. So it's going to be an intergenerational conversation, which will be very interesting to see the juxtaposition of modernity and contemporaneity. There is a lovely film at the back which actually captures just some vignettes of Haren Thakur's essence. But what the conversation today is going to be is really for all of you here, and many of you are good friends of Haren Thakur, but for you to understand where he comes from, what makes his work unique, what makes his work distinct, why I find him a hidden gem from Shantiniketan, because we are all very, very aware of the great legends that we have from there, from Ram Kinkar Baij, Nandalal Bose, Binod Bihari Mukherjee. The line is endless. We also have, where is my friend Kaushik? He's gone? Dinkar Kaushik's son was here. Vijay Kaushik is here? No. He had come here. Why I'm mentioning his name in particular is because Dinkar Kaushik, his father was principal at Shantiniketan when Haren Thakur was studying there, and he learnt a lot from him. So Haren is a voice which talks of the, as you can see in the canvases, paperworks, drawings in the gallery. Some are like scrolls, some are like modern canvases, some are drawings, but all of them have a very, very distinct language which Haren himself has developed, beginning with academic drawings. In fact, there's one drawing there with the back of a lady with a child sitting there, which reminds and has resonances of Hussain, and Haren almost, the signature seems like that, but it isn't. He is definite, nuanced, subtle, and he brings in Bengal and Jharkhand in a very unique style. I'm going to hand over the mic now to Dr. Mandakini Devi, who's made the film, who's done research, and the two of them have their own kind of dialogue, which I think will be interesting, then, present, and future. Hello, good evening, and I welcome you all. So, when I was to meet Harinda, and I start my video also with that when he asked me, why, like, how come you came to meet me all the way in Ranchi? And for me, it was quite a surprise, because when I saw his work and the more time I spent with him, his ideas were very contemporary, to which when I start reminding Sir, because Sir has what I personally feel, that not only is he very expressive in his work, but the way he talks, it just seems very casual, but I just learned a lot as a young artist, and that's where today I would like this conversation to go, Sir. Okay,
तो आई वांट टू बिगिन विद दिस क्वेश्चन कि जब मैं आर्टिस्ट थी, जब मैं बचपन में थी, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट आर्ट, मुझे याद भी नहीं है इफ आई एम क्रिएटिव. सो आपका बचपन कैसा था, कैसे माहौल में आप बड़े हुए हैं? एंड बिकॉज जितना मुझे थोड़ा बहुत आपने बताया था दैट देयर वाज, यू केम फ्रॉम अ वेरी कल्चरली रिच बैकग्राउंड, हाउसहोल्ड. So can you talk about some of your moments, your memories, which have stayed with you and which also led you to becoming an artist? Okay. Thank you everybody and Mandakini. Start with my बचपन कैसे बीता. बचपन तो बहुत तरीके से बीतता है, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, और वो बचपन कैसे बीता वो हम कैसे बताएंगे, मेरा मम्मी या डैडी नहीं जानते होंगे सबसे ज़्यादा. उन लोग ने बताएंगे कैसे बचपन बीता. वेदर आई वॉज नटखट और शांत टाइप थे, कुछ तो थे. एनीवे, बट आई वॉज वेरी मच, आई मीन नॉट सो नटखट लाइक दैट. शांत टाइप लड़के थे, ये बाद में सुने हम. आर्ट फील्ड में आने का एक सबसे बड़ा ये है कि हम which place I belongs to, that is Purulia basically, and my birthplace was in Jharkhand, Dhanbad Pathardi एक करके जगह है, वहाँ पर birthplace था. But my father was a postmaster, district postmaster, because of his transferable job. Different places में he had to visit, posted थे. तो anyway पुरुलिया में मेरा बचपन, स्कूलिंग पुरुलिया में हुआ. तो ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड क्या होता कि एक ये कोई भी आज का समय पर जो भी कलाकार सीनियर जूनियर जो भी है, शुरुआत ऑलमोस्ट सबका शुरुआत एक कैलेंडर कॉपी से होता है. ये एवरीबॉडी कैन से, जहाँ कॉपी वर्क मीन्स दैट कुछ भी घर में जो फोटो है, फोटो देख करके ड्राइंग करना, उसको देखकर कॉपी लगा, मतलब अट्रैक्शन कैसे बिल्डअप होता है. तो उसमें ड्राइंग देखकर सबको, जैसा कोई घर में अगर कोई दूसरे मेंबर का अगर दूसरे सब्जेक्ट में लेकर के अगर फ्यूचर बनाया और हमने आर्ट लेकर बनाया, मतलब वो जो इंजीनियर बने हमारे घर में एक भाई की दूसरे लाइन में गए, उन लोग का कभी ये ड्राइंग देख करके, कैलेंडर देख करके ड्राइंग करने का मन कभी नहीं किया था, लेकिन मेरा किया. पता नहीं, ये इट वॉज मे बी कनेक्टेड समवेयर. सो वो कुछ भी एक फोटोग्राफ्स देख करके, और जो कैलेंडर पहले आता था, देन मैगजीन में पहले आता था उस समय का, क्या वो जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, राम किंकर, लोग का कुछ पेंटिंग्स, ड्राइंग्स छपता था. तो लिटरेरी मैगजीन घर में कुछ आते थे, उसको उस सब देख करके हम मैंने कॉपी करते थे बचपन में. एंड अनदर ये होता कि दैट घर का सामने एक दुर्गा मंदिर, जिसमें दुर्गा का प्रतिमा बनाया जाता था. एक पटुआ जो होता है, द लोकल पॉटर, जो पॉटर जो दुर्गा प्रतिमा बनाते थे, वो चीज़ देख करके मेरा काफ़ी अट्रैक्शन हुआ. और वो देखते देखते मुझे लगा कि हमने हमेशा जाते थे वो दुर्गा मंदिर में जा करके बैठ करके वो पॉटर को देखते थे कैसे फर्स्ट मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, दैट स्ट्रॉ का स्ट्रक्चर, वुडन फ्रेम, देन ग्रेजुअली इसको कैसे डेवलप करते करते फर्स्ट लेयर ऑफ क्ले, सेकंड लेयर ऑफ क्ले, थर्ड लेयर ऑफ क्ले करते करते उसके बाद कपड़ा एंड मिट्टी का साथ घोल करके उसमें चिपकाते थे. करते करते एक लेयर बाय लेयर एक प्रोसेस देखते देखते वो, और हम हमेशा क्या करते ड्यूरिंग माई, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज पब्लिक बोर हो जाएगी. तो क्या है कि वो हम लोग को उस समय ना ये आर्ट लेकर के पढ़ना तो कल्पना का अतीत था. तो पढ़ाई छोड़ करके अगर हम क्या करते, दोपहर को सब घर में सब सो जाते थे, तब हम निकल करके उस प्रतिमा का जब बनाते थे उस समय हम बैठ करके वो देखते थे. देखने का समय लगता था कि ये जो बनाते हैं दैट पॉटर, दैट उनको तो पॉटर ही कहेंगे, पटुआ लाइक दैट. तो वो मुझे लगता था अगर वो हमको कुछ थोड़ा सा मिट्टी सानने को लिए भी अगर ऑर्डर करे, दे हम धन्य हो जाएंगे. आई फील प्राउड.
तो सचमुच जब देखा डेली आकर के लड़का बैठ कर के वहाँ खाली देख रहा है, तब वो बोला अरे इधर आओ, तुम उसको थोड़ा मिट्टी को हमको हाथ में दे दो। तो करते करते वो हम क्लोज हो गए, मतलब वो मिट्टी देने लगा और हमको बोला थोड़ा सा मिट्टी को बनाओ। करते करते देन आई स्टार्टेड आई मीन इन्फ्लुएंस विद दैट मिट्टी, यू नो, मिट्टी हाथ में मिला, उसके बाद हम ऐसा करके गूंद रहे, तो वो मुझे एक अद्भुत एक अट्रैक्शन लगा। दैट वाज द फर्स्ट फीलिंग्स, ओके। एंड धीरे धीरे वो अंगली बना रहा है दुर्गा प्रतिमा का, वो देखते देखते जब फाइनली कलर तक पहुंचता है, क्योंकि फर्स्ट कलर सेकंड कलर करके जो आँख चक्षुदान होता उस तक जब पहुंचते तब तक, लेकिन फाइनल मतलब जब पूजा का बाद जब पेंडेंट चला जाता है उसका बाद हम नहीं जाते थे। तो वो क्या है ना, बचपन में मुझे लगता है कि कोई भी बच्चों का 3 डायमेंशनल जो फॉर्म है, 3 डायमेंशनल जो कलर है, बाद में हम रियलाइज़ किया पेंटिंग से ज़्यादा हमको वो 3D स्ट्रक्चर आर्मेचर में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, अट्रैक्शन हुआ, बिकॉज इट हैज़ गॉट सम डायमेंशन। तो स्कल्पचर इज़ अ मोस्ट पावरफुल टू अट्रैक्ट द कॉमन पीपल, मुझे लगता है, कभी कभी लगता है, रादर देन पेंटिंग। तो ये इससे शुरू हुआ। दैट वाज माय बेसिक यू कैन से इनिशिएशन to start with my art line, okay? Sir, because this, by the, क्योंकि you know ये question जब मैंने आपसे पूछा भी था, then वो तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि उस समय कभी सोचे भी नहीं थे आर्ट कॉलेज में कि आर्ट लेकर के पढ़ना है, आर्ट लेकर पढ़ना है, कभी नहीं सोचे थे उस समय, हम लोग का समय ये 1960 68 69 to 70 like that, स्पेशली इन दैट रिमोट, नॉट रिमोट, पुरुलिया, जहाँ पर आर्ट कॉलेज का बारे किसी को पता भी नहीं है। घर में बोलना भी है कि आर्ट कॉलेज होता है क्या, आई डोंट नो। कॉलेज तो सुना है भाई, साइंस कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, आर्ट कॉलेज भी होता है, दे डिडंट नो बेसिकली, मतलब रियल सेंस में। अभी तो अलग बात है। तो वो जब देखे कि बट माय एल्डर ब्रदर ही नोज अबाउट इट, तो धीरे धीरे जब हम मैट्रिक हायर सेकेंडरी, उस समय हायर सेकेंडरी क्लास 11 में था, 11 पास करने के बाद मेरा साइंस कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था। तब बिकॉज ऑफ द ड्यूरिंग 1970 वाज द पीरियड ऑफ नक्सल मूवमेंट। पता नहीं अभी यंग जनरेशन को पता नहीं होगा, वो नक्सल मूवमेंट में आई वाज लिटिल बिट इंक्लाइन, मतलब दैट वाज अ काइंड ऑफ फैशन उस समय 70s में। नक्सल बनना इट वाज अ फैशन ऑफ दैट यंग स्टेज, वी आर सम यंग। तो उस समय धीरे धीरे कुछ पब्लिक आते थे, हम लोग को एक ग्रुप था फ्रेंड सर्कल में, दे वर इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम द कोलकाता, सम दादा टाइप लगता, कुछ मीटिंग होता था। तो ये देखकर घर में मेरा बड़े भाई को लगा अरे तो कुछ गड़बड़ लगता है, तो इनको तो अलग करना होगा, अदरवाइज तो उस नक्सल मूवमेंट वाज वेरी फेरोसस मूवमेंट, यू ऑल माइट बी नोइंग। तो वो जा करके तो बोला नहीं, या तो पुरुलिया में रखना नहीं थे, वो पता नहीं शांति निकेतन में एडवर्टाइज देख करके ये करके अप्लाई कर दिया था। अचानक शांति निकेतन से, कला भवन से कॉल भी आया, जब उन्होंने बोले जो चलो फलाना दिन में इंटरव्यू है, आर्ट कॉलेज में जाना है शांति निकेतन। आई डिडंट, इट वाज माय आउट ऑफ इमेजिनेशन। शांति निकेतन, मैंने कभी कभी हम शांति निकेतन टाइप का कुछ कल्पना में मैंने सपना देखते थे, इस टाइप का कुछ है, बट रियलिटी में शांति निकेतन जाना है, वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, मैंने बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो एनीवे चले गए, जा कर के एग्ज़ाम भी हुआ। उस समय तो इतना, अभी का जैसा करीब 5000 स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो अभी दैट टाइम वाज नॉट लाइक दैट। एग्ज़ाम हुआ, ड्राइंग बनाने दिए, एक तो ड्राइंग तो कर दिए थे, वो भी एक कुछ पेंटिंग भी बनाने दिए, पेंटिंग में कर दिया, लिस्ट में नाम भी फर्स्ट में आ गया, देन गॉट एडमिटेड। तो ये स्टार्ट माय बिगिनिंग। अभी नेक्स्ट बताओ क्या पूछना है। नहीं सर, आपने बहुत सी, अब जैसे सर ने बताया, ही डिडंट टेल मी कि यू नो ही वाज गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ द नक्सल मूवमेंट, सो दैट्स व्हाट एड्स आई थिंक अ लिटिल मोर। सो ये आपका एक, आई थिंक ये स्टाइलिश है, ये आपका, ये आपके पर्सनालिटी को और स्टाइल देता है कि यू वर गोइंग टू
नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि मुझे ये पता नहीं था सर कि आप मतलब आप ये हर ज्वाइन जगह करने वाले थे। बोलना नहीं है, आज इमोशनली बोल दिया हम। नक्सल बोलना इस बहुत बड़ा क्रेडिट का बात नहीं है। Sir, but going back, Anyway. sir, but going back to the idea of layers, and then when you were saying कि जब आप वो मूर्तिकार को देख रहे थे, पहले उसने क्ले का लेयर बनाया, फिर फीचर्स लाए, फिर कलर आया। सर, आपके काम में भी बहुत लेयरिंग है, क्योंकि मैंने आज जब आपसे पूछा था एक बारी, इज इट पेंटिंग or is it like printmaking? You said no, it is painting. So will you talk a little bit about your process, that how आप एक तो आप राइस पेपर यूज करते हैं, फिर आप उस पर ड्राइंग करते हैं। राइस पेपर का मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स एक्सेप्ट फ्यू ड्राइंग्स एंड एक दो छोड़ करके ऑल पेंटिंग्स आर बाय मीडियम इज राइस पेपर। एंड राइस पेपर का पता नहीं विजय दा आया कि नहीं, उस समय विजय जी का पिताजी दिनकर कौशिक वॉज माई प्रिंसिपल। ओके, तो शांति निकेतन में राइस पेपर नॉर्मली जो हम लोग टेम्परा पेंटिंग होता है, टेम्परा पेंटिंग का जो बेस बना करके राइस पेपर को यूज़ करते थे हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो बोर्ड में राइस पेपर को माउंट करके देन उसका ऊपर लेयर बाय लेयर एक कोटिंग लगाकर, वाइट कोटिंग होता है, वो भी दैट नेचुरल अर्थ वाइट लगाना। फिर उसका बाद एक गम होता है दैट क्या बोले, इमली का जो बीचा होता है उसको पीस करके उसका एक गोंद टाइप होता है, उसमें वो लेयर बाय लेयर मतलब ग्लू लगाने का बाद देन टेम्पर एक प्रोसेस चलता था। धीरे धीरे लेयर बाय लेयर लगाने का बाद ओरिजिनल राइस पेपर का जो टेक्सचर हम ये खत्म हो जाता है, मतलब नो टेक्सचर इज विजिबल। देन उसके बाद पेंटिंग करते हैं, बाद में लगता है कि राइस पेपर है कि केंट पेपर है कि माउंट पेपर है, डिडंट नो। तो पता नहीं, हमको दो चार करने के बाद लगा कि व्हाई नॉट टू यूज दिस राइस पेपर एज माई मीडियम। तो राइस पेपर का जो थिन आप लोग देखे होंगे राइस पेपर, तो वो उसका टेक्सचर एंड उसका जो ट्रांसपेरेंसी जो दिखने में लग रहा है वो बड़ा अट्रैक्ट किया हमको। एंड राइस पेपर का एक अच्छा क्वालिटी है कि इफ़ यू डिप इनटू द वाटर राइस पेपर, फुल राइस पेपर, एंड अगेन यू गेट इट अप एंड यू कैन स्प्रेड इट जस्ट लाइक ए क्लॉथ, इफ़ यू प्रॉपरली यू कुड हैंडल इट, तो वो क्लॉथ जैसा वो स्प्रेड किया जा सकता है, मतलब तुरंत वो फटता नहीं था। तो वो देख करके लगा नो आई शुड बी केयरफुल अबाउट द यूजिंग ऑफ द राइस पेपर एज ए मैंने मीडियम। पता नहीं वो राइस पेपर कट करके हमने एक कोलाज बनाए थे। कब? दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग माय एक हम लोग मेरिट स्कॉलरशिप का टेस्ट होता था फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर में। तो देन आई बेट दैट वंस कोलाज पेंटिंग विच इज़ हियर इवन नाउ, दैट इज़ 1974 आई थिंक, व्हेन आई वाज इन फोर्थ ईयर। तो उस समय हम ये पेंटिंग हम एक कोलाज फॉर्मेट में बनाए थे। तो वो पेंटिंग जब मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट में जब हम सबमिट किए करने का बाद, कौशिक दा एंड सोमनाथ होड़ वाज माय टीचर, वो दोनों ने हमको बुला करके बोला, हरेन ये इज़ ए वेरी एंड आई गॉट स्कॉलरशिप विद दैट वर्क। तो इज़ अ गुड medium as a the paper you have used as a in this form में जब आप यूज़ किए हो, you just go on, इसमें काम करो कुछ। तो पता नहीं क्लिक कर गया हमको। उस फोर्थ ईयर से आई स्टार्टेड पेंटिंग, आई मीन कट करके फॉर्म क्रिएट करके उसको हम पेंटिंग बनाते थे ये, एंड बैकग्राउंड में कुछ कलर यूज़ करके। दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन फोर्थ ईयर। एंड वो पेंटिंग इसलिए अभी भी है, आई थिंक आई डोंट नो 74 का पेंटिंग है, आज कितना साल हो गया, अभी भी एज इट इज़ है, being intact. I kept it in proper way. So आज तक पेंटिंग हम राइस पेपर को छोड़े नहीं, राइस पेपर ही चल रहा है मेरा। उसका एक अलग एथनिक एक वो है, क्या बोले, मिट्टी का साथ लगता है, और मेरा नेचर के साथ जाता है वो, द टेक्सचर, द सॉफ्टनेस, द कलर, एवरीथिंग इट गोज विथ माय फीलिंग्स। तो लाइक राइस पेपर टॉक्स टू यू, आई कैन हैंडल इन एनी वे। आपने ही तो कहा था इट टॉक्स टू यू। या तो दैट वाज माय मीडियम, एंड उसमें कुछ डिफरेंट कलर, इंक, आई मीन द एक्रेलिक,
वाटर कलर वट एवर में भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन अनदर थिंग है, राइस पेपर के साथ एक्रेलिक कलर जब हम यूज़ करते हैं, इट डजेंट एक्सेप्ट इन दैट वे। बट वाटर कलर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब जो करते हैं ना, द वाटर कलर एंड राइस पेपर का साथ बहुत अच्छा संबंध है। बट एक्रेलिक कलर का साथ जो संबंध मुझे अच्छा नहीं लगा। इट गेट्स मुझे लगता है इट रिपल्सिव एटीट्यूड हो जाता है। एक्रेलिक को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है राइस पेपर। सो राइस पेपर इज मदरली पेपर लगता है, वो वाटर कलर को एक्सेप्ट जितना करता है, नॉट एक्रेलिक। मदरली, मम्मी के जैसे मुझे लगता है, इट्स माय फीलिंग, माय ओपिनियन। सो सर, जैसे अब आप, जैसे आपने मेंशन किया, और यू नो वी नो आपके जो टीचर्स थे उस टाइम पे, दे वर वेरी वेरी, यू नो, आई थिंक दे वर वेरी प्रोग्रेसिव, विच वी ऑल नो। बट सर, आपकी क्या वो मेमोरीज, या आपने उनसे क्या एक यू नो एसेंस क्या था शांति निकेतन का, एक जो उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी, जैसे उन्होंने आप लोगों को आपको सिखाया, उसमें उसकी यूनिकनेस क्या है सर? हाँ, प्लीज प्लीज, गुड क्वेश्चन, थैंक यू सर। क्योंकि शांति निकेतन माइक, ओह सॉरी, शांति निकेतन का एक स्कूल ऑफ शांति निकेतन का जो टीचिंग नॉट क्वालिटी, द परंपरा है, जो शैली है सिखाने का, सीखने का, वहाँ कोई हाथ पकड़ के सिखाता नहीं का शांति निकेतन में, नेवर। शुरुआत में हमने जब गए तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लगता था अरे नोबॉडी इज बॉदर फॉर द स्टूडेंट, कोई सिखाता नहीं यहाँ पर पकड़ करके, क्या बात है, कोई दिखाते भी नहीं, हम लोग काम करते जा रहे हैं, टीचर आ रहे, प्रोफेसर आ रहे, बोले करते जाओ, गो ऑन वर्किंग। इतना दूर से, बिकॉज आई वॉज इन सच ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली, या पढ़ने का बाद अगर एक नौकरी भी नहीं मिलेगा तो व्हाट शुड आई डू, मन में फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। ये रियली इट इज़ अ फैक्ट कि ये हो रहा था, क्या करें यहाँ से, तब छोड़ के चले जाएगा वहाँ, फिर साइंस कॉलेज में एडमिशन ले जा करके कम से कम एक नौकरी तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सिखाता नहीं, क्या करेंगे। जो काम कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक काम कर रहे हैं, करते जाओ, दिखा रहे, ओके गुड, करो। This was the only dialogue from the teacher, not more than that. But they used to observe. वो लोग देखते थे। करते करते एक दिन हमको तब फीलिंग हुआ जब when I was सेकेंड ईयर एंड में मे बी एक स्कल्पचर हम बनाए थे मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का स्कल्पचर मॉडलिंग जो होता है ना, छोटा छोटा मॉडल बनाना पड़ता है। थर्ड ईयर तक शांति निकेतन में क्या है कि इज़ अ कॉमन, थर्ड ईयर तक सब कुछ करना होगा, ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइन, अल्पना, एवरीथिंग, लिनो कार्ट, सब कुछ इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट। तो एक पेंटिंग स्कल्पचर मॉडल बना करके हम रख दिया, कॉम्पोजिशन, फिगरेटिव कॉम्पोजिशन। शर्बरीदा का ग्रुप था, 15 डेज़ का ग्रुप होता था वो, तो शर्बरीदा का ग्रुप होगा तो हम काम करके रख दिए। फिर क्लास ख़त्म हो गया, 3-4 दिन बाद फिर नेक्स्ट ग्रुप शुरू हो गया पेंटिंग का। तो एक दिन हमको अचानक मेरा एक क्लासमेट, मे बी श्यामा और समबडी एल्स, श्यामा बोले अरे हरेन तुमको शर्बरीदा खोज रहा था, प्लीज़ आकर जाकर मिल लेना। पता नहीं तुम्हारा नाम लेकर के बोल रहा था स्कल्पचर स्टूडियो में, जो कहाँ है हरेन, तुम्हारा कुछ काम देख करके। तो हमने शर्बरीदा का पास गए, जा कर के बोले क्या शर्बरीदा, हमको तो डर लग रहा था, पता नहीं क्या बात। उस समय क्या था ना, हम लोग टीचर के साथ इतना वो नहीं है कि वी कांट टॉक, मैंने उतना वो नहीं, फ्रीली फ्रैंकली टॉक नहीं करते थे। वो लोग आते थे, बैठते, गप करते थे, डिस्कस करते थे, लेकिन सामने बैठ कर हम लोग देखते थे। अभी का शांति निकेतन थोड़ा सा अलग है, दे आर सो फ्रैंक एंड फ्री बाय टॉकिंग, लेकिन हम लोग का समय थोड़ा सा डर था, मतलब बिकॉज मे बी ड्यू टू वी आर फ्रॉम सच ए प्लेस, वी आर नॉट सो स्मार्ट लाइक अभी का जैसा। तो एनीवे, तो शर्बरीदा जब बोले जे हरेन ठाकुर, तुम्हें ठाकुर मोशाय, तुरंत बोला हमको ठाकुर मोशाय बांग्ला में बोले, तुम्ही एदिके एसो दिए। हमको वो जो मॉडल जो है, हमको डर लग रहा था, क्या बात है, वो मॉडलिंग टेबल होता है ना, जो घुमा कर मॉडल करता है, उसका ऊपर रखने का बाद बोला जे अभी देखो इधर आओ ठाकुर मशाई, তুমি যা করেছো তুমি নিজেই জানো না কি অসাধারণ একটা কাজ করেছো। মানে
पता नहीं हमको मतलब क्या काज काम किए हैं, हमको उन्होंने घूम करके दिखा रहा था, इधर से देखो, इधर से देखो, सच ए ब्यूटीफुल प्लास्टिक क्वालिटी इसमें है हरेन ठाकुर, तुम यू डू नॉट नो, तुमको शायद पता भी नहीं है, लेकिन हम कर दिए थे। एक रिलैक्स लेडी बनाए थे हम मॉडलिंग में, क्ले में, वो देखकर आपको ईच एंगल को घुमा घुमा करके दिखा रहा था। बाद में पता नहीं हमको एक सेंसेशन हुआ, अरे आज तक कभी कोई कुछ नहीं बोला कि हम कल ही खाली बोला है करते जाओ करते जाओ, कभी हाथ पकड़ कर दिखाए भी नहीं, हमने अपने आप किया। तब बोला जो नहीं, जब पूरा एंगल को दिखा करके हमको बताया जी दिस आर द प्लास्टिक क्वालिटी, आई डू नॉट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक क्वालिटी, वो क्या होता है प्लास्टिक क्वालिटी। तो एनीवे धीरे धीरे सब समझने लगा। वो यही बोले जे एंड ये तुम करो स्कल्पचर करो, तो वो पता नहीं हमको सेंस में लगा कि जे हम लोग सोचते हैं ना कि ये लोग हाथ पकड़ कर कभी सिखाता नहीं, नॉट लाइक दैट। धीरे धीरे लेकिन दे यूज टू ऑब्जर्व ये क्या कर रहा है, क्या है भीतर में, वो लोग निकाल मतलब देखते हैं। और शांति निकेतन का जो स्टाइल है वर्किंग, यही द सेम थिंग है कि कभी नहीं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करके कोई वो नहीं है, वो लोग खुद अपने काम करते हैं, हम लोग खुद अपने काम करते हैं। अब दोनों काम करो, दोनों स्टूडियो में काम करो, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करो, दैट मच। लेकिन पता नहीं अदर स्कूल अब जो है कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे जो भी है, उसमें हो सकता है एकेडमिक प्रोसेस एक अलग तरीके से चलता है, वो मॉडल स्टडी से लेकर के जो भी है हाथ पकड़ करके जो सिखाना, बट हम लोग को कभी नहीं, नेवर। ये हम लोग का जो मतलब सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, प्योरली टीचर एंड स्टूडेंट का एक इमोशनल रिलेशन से बनता था वो, नो एनी डायरेक्ट गाइडेंस बाय टेकिंग योर हैंड, ऐसा करो ऐसा करो, और कभी टच नहीं करता था, नेवर। कोई हम लोग का अपना काम में नेवर दे यूज्ड टू गिव द करेक्शन कभी नहीं होता था। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हम लोग को ट्रेन हुआ, दैट एक अलग वो है फिर। सर डू यू थिंक बिकॉज you know, आपको इतना like शांति निकेतन में they didn't teach you like to copy your teacher's style. So do you think because of that, how is that now in the work you make? Like जैसे आप नेचर को देखते हैं, आप कहते हो कि मैं पेड़ को एक फोटोग्राफ के जैसे नहीं बनाऊंगा, a line is not straight, it's not a clinical line, and जैसे आपने कहा था आप नेचर को ऑब्जर्व करके dots mean a line. So will you talk about that please, Yeah. sir, in your work? So, yeah. एक छोटा सा इंसिडेंट्स बताना चाहूँगा कि जो हम लोग को कैसे मैंने सीखने का क्या तरीका है। व्हेन आई वाज इन मे बी सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में हम ऐसा मॉडलिंग क्लास में मॉडलिंग कर रहे हैं, मिट्टी का कुछ हम लोग बना रहे हैं। देन वहाँ से दूर से किंकरदा आ रहे हैं, राम किंकर वॉज दैट टाइम, बट ही वॉज रिटायर कर गए थे, बट ही वॉज एज ए इमेरिटस प्रोफेसर थे, बट ही यूज्ड टू विजिट फ्रीक्वेंटली, मैंने हमेशा आ जाते थे कला भवन में। तो किंकरदा आ रहे हैं तो हम लोग काम कर रहे थे कि प्रोफेसर और बाकी सब जो थे सीनियर्स, कौशिक दा, अजीत दा, शर्वरी दा, ये लोग ना थोड़ा सा अलर्ट हो गए। तो मुझे उस समय इतना भी पता नहीं था हु इज़ किंकरदा, किंकरदा का क्या मतलब पर्सनैलिटी है। किंकरदा जब दूर से आ रहे घुस रहे, बट जैसा फीलिंग हो रहा था कि जंगल में शेर राजा है, मतलब द लायन। जब जंगल में आ जाता है, पदार्पण करते हैं, तब बाकी एनिमल्स जितने भी है थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। द सेम फीलिंग वॉज दैट टाइम। किंकरदा गेट से दूर से दिख रहा है, किंकरदा टोपी पहन करके, वो खाकी पैंट एंड एक तो वाइट शर्ट पहन के घुस रहा है, और बाकी टीचर प्रोफेसर बाकी जो है सबको ना थोड़ा सा देखा रहे किंकरदा आ रहा है। पता नहीं अपने आप एक उन लोगों में सेंसेशन क्रिएट हो गया, उन लोग अपना अपना कई जगह में बैठ ये हो गया, किंकरदा हो गया। मुझे सेम फीलिंग हुआ जब आते हैं ना बाकी एनिमल्स सब अलर्ट हो जाते हैं, सेम टाइप देखने लगा। किंकरदा जब आया अंदर में स्कल्पचर स्टूडियो में, नमस्कार किंकरदा हो रहा था, तब बाद में पता चला हु इज़ किंकरदा फ्रॉम माय सीनियर स्टूडेंट्स। तो हमारे बगल में एक गिरीश बोरा करके असम के एक स्टूडेंट था, वो ही वॉज दैट टाइम 4th ईयर।
तो उन्होंने एक स्कल्पचर बनाते, बिकॉज उन्होंने मॉडलिंग स्टूडेंट मतलब स्कल्पचर स्टूडेंट का ही था वो, तो मिट्टी का बहुत दिन से देखते, मतलब 3-4 हफ्ता से ना वो एक घोड़ा बना रहा था, घोड़ा मतलब हॉर्स, रनिंग हॉर्स बना रहा था, ठीक है। उसका ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। तो किंकरदा आया, तो गिरीश बोड़ा का हम बगल में हम भी बना रहे, तो बगल में गिरीश दा का काम देखने का बाद बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी वो दिन याद आ जाता है। वो आकर बोले, गिरीश ये क्या बना रहा है? बोला किंकरदा। वो तो डर से बोल रहा है, किंकरदा इज ए द घोड़सवार जिसको बोलता है, मतलब द मैन विथ अ हॉर्स लाइक दैट। तो किंकरदा घूम के देखा बोले घोड़ा, तो घोड़ा বানাচ্ছ তো মানুষ বসে আছে, तो बट घोड़ा दौड़ रहा है, बट वेयर इज योर ह्यूमन बीइंग? दौड़ नहीं रहे, वो चुपचाप बैठा हुआ है। आदमी कहाँ दौड़ रहा है? মানুষ কোথায় দৌড়চ্ছে? ঘোড়া দৌড়চ্ছে, বাট মানুষ দৌড়চ্ছে না, মানুষ তো ওর উপরে বসে আছে। দ্য ম্যান ওয়াজ সিটিং অন দ্য हॉर्स, बट मैन में कोई मूवमेंट नहीं है, घोड़ा में मूवमेंट है। तब एक वो क्या बना रहा था? जस्ट लाइक ए डॉल। एक तो जो होता है ना, वो जो कृष्णनगर का एक पुतला होता है, लाइक दैट डॉल जैसा एकदम स्मूथली फिनिश करके बना रहा है। वो जो मॉडलिंग टूल होता है उसमें एकदम चिकना टाइप स्मूथ बना करके एकदम इतना फाइन किया, डिटेल्स वो हेयर्स एंड ये सब दिया। देने के बाद पूछ वह है, और किंकरदा उसको हाथ में ऐसा करके, हाथ जो हुई है ऐसा करके उठाया, देन एक तो ऐसा मुट्ठी बनाया, और पीछे से जो घोड़सवार का पीछे से एक तो घूसा मारा पूरा मूर्ति का पीछे। इतना बड़ा मूर्ति था, एक घूसा मारा। घूसा मारने के बाद मेरा हम लोग के सामने ही घटना हुआ, और गिरीश दा सोच रहा है गया मेरा मूर्ति खत्म कर दिया। वो सोचा टूट गया, इतना दिन से बना रहा है। एक घूसा मारा, आकर चलो अभी तुम्हारा घोड़ा आदमी को लेकर के दौड़ रहा है। जब हम लोग दूर में आया, देखा सचमुच एक घूसा गिविंग अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन दैट स्कल्पचर, ऑन दैट मॉडल। लग रहा है सचमुच दैट घोड़ा 10 आदमी को लेकर के फोर्सफुली दौड़ के जा रहा है। पीछे से ऐसा मारा, पूरा ऐसा टेढ़ा हुआ, आदमी भी बेंट हो गया साथ में मिट्टी, और घोड़ा भी एकदम दौड़ने लगा। दैट वाज द क्लास। वो मैंने अभी भी जब याद होता है, इससे क्या लेसन चाहिए और क्या हाथ पकड़ने का सिखाने की जरूरत है? एक घूसा में सिखा दिया क्या फोर्स होता है, क्या पावर है इसमें। वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो आपकी जो, बिकॉज अब ओवर द इयर्स आपने ये जो एक विजुअल लैंग्वेज डेवलप, सॉरी थोड़ा सा बाकी रहेगा, लाइन का बारे तुम यस गुड लाइन प्लीज। तो लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा, बट माय व्यू में भी, हमारे सब और है सीनियर कलाकार भी यहाँ पर है, कि इट्स पर्सनल व्यू में कि शांति निकेतन में एक चीज़ है, सेलिम दा का क्लास मिलता था हम लोग को, सेलिम मुंशी। ओके, तो सेलिम दा का एक क्लास था को नेचर स्टडी, हम लोग को नेचर में ले जाते थे, मतलब आउटडोर स्टडी, बट ही वॉज वेरी मच डिसिप्लिन। उनका एकदम मैंने सब बोलते हैं ना, पान से अगर चून खसक गया तो पनिशमेंट मिलेगा, लाइक दैट यू नो। टॉप ओनली ही इज़ द पर्सन who used to make all the discipline work, मतलब जूता बाहर रखना है, कैसे करके कॉपी रखना है, कैसे करके पेंसिल को, इवन पेंसिल को कैसे करके छीलना है, वो भी उनको एंगल है, उस एंगल में छीलना है, उससे ज़्यादा एंगल छीलोगे तो डांट खाना पड़ता था। ओनली ही इज़ द एक, बट वो बाद में हम लोग को पता चला दैट वाज आल्सो नीडेड फॉर द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट इतना इमोशनल हो जाता है, वो सब केयर नहीं करता है, बट वो भी ज़रूरत होता है कभी कभी। तो सेलिमदा ने सिखा था कि आउटडोर में पेड़ का डाली, सूखा पेड़ का डाली को लेकर के वो जो इंक में डुबा करके उसको स्केच करना, ड्राइंग करना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें ना बड़ा देखो ड्राइंग का जब करोगे, नॉट ओनली दैट ऑलवेज ब्रश से ड्राइंग करो कि पेन से ड्राइंग करो कि उससे करो ना, पेंसिल से ड्राइंग करो, लेकिन एक बार वो जो ड्राई ब्रांच से तुम ड्राइंग करके देखो, उसका थोड़ा सा पॉइंट बना करके, थोड़ा सा टेढ़ा है और निकल गया, उसके बाद देखो अलग मज़ा आएगा। लेकिन जब हम लोग किए हैं कुछ ड्राइंग, वेरी सेंसिटिव ड्राइंग, तो वो ड्राइंग कुछ किए करने के बाद करते थे, उस समय करने के बाद थोड़ा सा मुझे पता लगा जो ड्राइंग का लाइन्स जो है, लाइन शुड नॉट बी सो स्टैगनेंट। लाइन, मुझे लग रहा है कि लाइन होना चाहिए, हम अपने आप, मेरा फीलिंग है कि लाइन होना चाहिए जस्ट लाइक ए रिवर वाटर,
रिवर वाटर में क्या होता है, रिवर वाटर स्टार्ट विथ वन पॉइंट, इट फ्लोज ऑन द ग्राउंड, कहीं पर पतला हो जाता है, कहीं पर चौड़ा हो जाता है, कहीं पर थोड़ा सा डाउन है तो वो रिवर का जो वाटर है धीरे धीरे पत्थर में टच करके इट गिव्स लॉट ऑफ म्यूजिकल साउंड्स। अगर पता नहीं आप लोग का एक्सपीरियंस होगा तो वो म्यूजिकल का साउंड क्रिएट होता है रिवर वाटर। देन फिर जहाँ पर ज़्यादा स्पेस मिल जाता है इट गिव्स लॉट ऑफ वाइडर साउंड, ज़्यादा बड़ा साउंड निकलने लगता है। तो ये साउंड एंड लाइन ऑफ फ्लोइंग वाटर, लाइन शुड बी लाइक दैट, क्योंकि इट शुड नॉट बी स्टैगनेंट। वो जब वही वाटर का लाइन, वाटर जब एक डैम में अगर हम देखते हैं कि एक पॉन्ड में देखते हैं, छोटा पॉन्ड में, तब क्या होता है स्टैगनेंट हो जाता है, उसमें देयर इज नो एनी फ्लो। तो आई डिनोट ऑलवेज लाइन, माई लाइन शुड बी इन दैट वे कि लाइक ए रिवर वाटर, इट शुड बी लाइक ए डियर रनिंग। एक हिरन छूट रहा है, सपोज एक हिरन छूट रहा है, दौड़ के जाने के बाद देखो हिरन जब दौड़ते हैं थोड़ा देर जाने के बाद पीछे मुड़ के देखता है स्टॉप होकर के, फिर देख करके फिर से दौड़ता है। ये जो जर्क line should be like that, not starting from one point, the same dimension and another dimension it goes like that and the another point ends in that same dimension. It मेरा नज़र से लगता है is a dead line. Sir, but तो इसीलिए sir, I want to know how important, or because I feel like जैसे आप कहते हो you're very inspired by the design that exists in nature. So how important is your relationship with nature in your for your practice? Because आप देखोगे कि नेचर में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, नेचर इज कहीं पर स्ट्रेट लाइन नहीं। नेचर में एक पेड़ देखो, सिंपल एक पेड़, ठीक है, एक पहाड़ देखो, एक कुछ भी जो नेचुरल ग्राउंड में जो भी एलिमेंट्स देखो, कहीं पर एक सिंपल एक पेड़ में देखो, कहीं पर एक पत्ता देखो, कहीं पर स्ट्रेट लाइन यू कांट फील। इट स्टार्ट विथ एक लाइन से, अगर उसका तो कोई लाइन नहीं होता है कि कोई लाइन तो उस स्पेस का साथ वैनिश हो जाता है ना। तो उस हिसाब से अगर तुम ड्राइंग करोगे, स्टार्ट विथ ए ड्राइंग, गिव ए थिक लाइन, धीरे धीरे पतला करके उसके बाद वैनिश कर दो ऑन द स्काई, तो इट गिव्स अनदर डायमेंशन, यू कैन एंजॉय इट। अगर उसको पूरा स्टार्ट करो एक पॉइंट से, फिर ख़त्म करो एक पत्ता को, वहीं तक ख़त्म करो इधर भी, पता नहीं। तो धीरे धीरे जब ये जो मतलब कि एकेडमिक के लिए हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस दे दो ड्राइंग को भी, खेलने को लिए, प्ले करने को लिए, उड़ने को लिए, थोड़ा सा ओपन स्काई चाहिए ड्राइंग को। वो डेप्थ जो है, वो डेप्थ, उसमें डेप्थ क्रिएट हो जाता है, उसमें सेंसिटिविटी आ जाता है ड्राइंग में। ये इट्स माई फीलिंग। So sir, can you tell me about, or actually tell the audience, you know, how have you reached your visual journey? Like, because अब time बदल गए हैं, तो आपको क्या difference दिख रहा है, और क्या struggle थी आपको, क्या struggle आपने face की अपनी एक visual language बनाने के लिए? You know sir, given कि उस time जैसे आप कहते हो कि किसको पता था art एक subject, और अब आप देखिए so many people are interested in Indian art. So many students, I mean, so many young children want to study art and not become a lawyer, doctor, engineer. And we have so much more, I mean, awareness and also opportunity to study art. You know, आजकल के बच्चे, like हम, और तो क्या difference आपने देखा, like मतलब कि आपकी जो स्ट्रगल है विजुअल, आपकी स्ट्रगल है यू नो विजुअल लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, तो आजकल क्या हमारी स्ट्रगल में क्या फ़र्क है? बात यह है कि विजुअल लैंग्वेज तो इन ऑल रेस्पेक्ट सब में विजुअल लैंग्वेज का तो बहुत ज़रूरी होता है, एंड सब कोई तो विजुअल लैंग्वेज को लिए तैयार नहीं होता है, मतलब लर्न करना पड़ता है। एंड स्पेशली और शांति निकेतन का जो भी हमारे पास आउट है, शांति निकेतन कल्चर में जो बिलोंग करते हैं, वहाँ का एजुकेशन में उन लोग का एक अलग घराना है। वो घराना सब घराना का साथ मिलता नहीं। व्हाट आई फील, इट्स माय फीलिंग। दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता जो भी है वहाँ पर वो अलग अलग टाइप है। कि शांति निकेतन का एक इमोशन जो है ना, वो टिपिकल एक अलग ही है, क्योंकि वो पूरा नेचर से बिलोंग करता है। सर बट मतलब कि आपको क्या लगता है कि जो
आजकल जो स्ट्रगल है, हाउ इज दैट चेंज्ड? व्हाट काइंड ऑफ अ तो स्ट्रगल? ये चेंज ठीक है, चेंज ऑलवेज वेलकम, ओके, ऑलवेज वी But- हैव उसको एक्सेप्ट करना है चेंज को, वी कैन नॉट इग्नोर इट। तो अभी भी शांति निकेतन में जो हो रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, लेकिन ड्यूरिंग आवर टाइम या ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय एक एक परंपरा था, क्योंकि उस समय और एक मेरा ट्रांजिशन पीरियड था, क्योंकि हमने जब पढ़ते थे उस समय हमारे जो टीचर थे, नंदलाल बोस के बेटा, नंदलाल बोस के बेटी ये लोग थे, गौरी विशुदा थे, विश्वरूप बोस, ही वॉज आवर ग्राफिक टीचर, गौरी दी थे, डिज़ाइन टीचर थे, देन सुखमयदा, देर ऑल शांति निकेतन घराना, मतलब नंदलाली घराना करके कहें तो ठीक है। तो हम लोग उस घराना में काम करते थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक। उसी समय ज्वाइन किया हमारे शर्बरीदा, सोमनाथ दा, कौशिक दा, तो शांति निकेतन का एक स्टूडेंट है एनीवे। तो कुछ कंटेम्प्रेरी जो उस पीरियड का कंटेम्प्रेरी मॉडर्न काम करने वाले जो पब्लिक है, मतलब टीचर्स है, वो लोग ज्वाइन किया। तो ये बड़ा अच्छा पीरियड था हम लोग को लिए, इट वॉज ए बिग चैलेंज फॉर मी, क्योंकि वो हम इसको पकड़े कि वो पकड़े, मतलब कंटेम्प्रेरी अभी जो चल रहा है कंटेम्प्रेरी आर्ट, और दैट पुराना घराना जो डिज़ाइन जो हमारे अजंता इलोरा का जो फ्रेस्कोज, हमारे शैली जो चल रहा है उस घराना का शांति निकेतन, उस चीज़ को पकड़ के चले फ्यूचर, और अभी का जो हमारे इन लोग का जो कंटेम्प्रेरी आर्ट जो चल रहा है इसको ही करे, ये दोनों को ले करके चलना, क्योंकि वो भी सीख रहे थे, हम लोग इसको भी देख रहे हैं। लोग हम लोग का सामने सोमनाथ दा एचिंग कर रहे हैं ग्राफिक स्टूडियो में, हम लोग क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करना पड़ा एचिंग, देन लिथोग्राफ, ये सब थोड़ा करके करना हुआ। तो वो उनका लाइन जब दे रहा है, मुझे लग रहा है जब अजंता इलोरा वाला जो लाइन है उसका तो एक अलग कैरेक्टर है, ये सोमनाथ दा का लाइन तो इज़ मोर सेंसिटिव मुझे लग रहा था, इज़ अ मोर मतलब लग रहा है उसका उस डेप्थ और ज़्यादा है। ये तो ऑर्नामेंटली तो डेकोरेटिव लग रहा है, बट इट हैज़ गॉट मोर सेंसिटिविटी। तो वो दोनों का एक अद्भुत पीरियड में हम लोग बिताए। तो उसमें पता नहीं हम थोड़ा दोनों को छोड़ नहीं पाया, दोनों लेकर के स्टार्ट किए, दोनों लेकर के जर्नी करते करते पता नहीं विजुअल लैंग्वेज क्रिएट हुआ कि नहीं, आई डो नॉट नो। तो वो एक ज़रूरी है कि किसको पकड़े किसको छोड़े। अगर एक चीज़ को बैकग्राउंड तो नो डाउट पुराने बैकग्राउंड ले करके नया को जोड़ करके दोनों को कंपाइल करके अगर एक नया कुछ फिर निकले थर्ड एलिमेंट्स, तो वो एक अलग मज़ा है। तो वो करते करते धीरे धीरे एक हो रहा। लेकिन अभी का जो कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बताएंगे कि मुझे हम जब देख रहे बहुत कोई हमारे स्टूडेंट्स जो बहुत है, तो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है कि हम तो बोलते हैं भाई तुम लोग को एक चीज़ है, कट एंड पेस्ट वाला सिस्टम को छोड़ो। ये बहुत बड़ा एक वायरस चल रहा है अभी। मे नॉट भी सब कोई नहीं है, बट रातों रात एग्जीबिशन करना, रातों रात फेमस हो जाना इतना आसान नहीं है। 50 इयर्स जर्नी में आज थोड़ा सा हमारे मुझे लग रहा है, आई एम हैप्पी दैट अलका जी मुझे झारखंड का जंगल से ढूंढ के निकाला हमको। तो ये मामूली बात नहीं है। 50 साल जर्नी का बाद थोड़ा बहुत कुछ कर पाए तो पब्लिक कुछ देख रहे हैं। तो काम में वो है चाहिए, वो ऐसा नहीं है एक दिन में और कुछ वेस्टर्न। देखो बेसिकली ये हमारे दोष नहीं, मतलब ये हमारे में भी गुरु लोग का दोष है, टीचर्स का दोष है। मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज हम लोग कभी उस चीज़ को ना लोग को समझाते नहीं है। अभी का जो जनरेशन है तुरंत आ जाता है एकदम परफॉर्मिंग आर्ट में, तुरंत आ जाता है जो इंस्टॉलेशन आर्ट में। लेकिन इंस्टॉलेशन परफॉर्मिंग आर्ट, ये इट इज़ माई व्यू, मे नॉट बी सबका ये नहीं। कभी कभी लगता है कि सब कोई बोलते हैं कि हम सर ये कर दिए, एक क्या नाम है बकरी का क्या मतलब दैट लीवर दुकान से खरीद करके ला करके एक वाइट प्लेट में रख दिया, प्लेट में रखने के बाद कुछ ब्लड ये रख दिया, रखने के बाद आई थिंक दैट इज माई आर्ट फॉर्म। कोई एक डेड बॉडी जैसे एक बॉडी को रख दिया, मतलब सजा करके स्मशान घाट का एक दिखा रहा है। अरे वर इज़ द फीलिंग ऑफ दैट मिलांकली शूर कहाँ पर है, वर इज़ द
सॉरोनेस कहाँ पर है, उसमें है ही नहीं। बॉडी एक तो सजा करके कपड़ा, वाइट कपड़ा डाल करके, कुछ माला पहना करके, उसका बस सब वो बैठ करके खड़े होकर के मौन कर रहा है। इट्स नॉट, इट्स माई फीलिंग, मे बी दे आर राइट, आई मे बी रॉन्ग। तो वो भीतर में कहाँ जा रहा है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट और योर इंस्टॉलेशन आर्ट इज नॉट ए न्यू इन आवर कंट्री। ये आज से अगर घर में जितने भी रिचुअल्स होता है, जब रिचुअल्स में सब में परफॉर्मिंग आर्ट इज इंक्लूडेड। हमारे दादा दादी माँ लोग सब जो पूजा करते थे, हर पूजा में अगर देखोगे तो सब में पूजा का डिफरेंट इंस्टॉलेशन वो होता है, तीर होता है, गोबर लगता है, कपड़ा लगा करके उसमें सजावट होता है, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना इमोशन जुड़ा हुआ है, कितना दिन से वो उस सबको जुगाड़ करके तब उसको सेंटिटी मेंटेन करके पूजा करता है। दैट इज़ द यूज टू, मतलब एक व्यवहारिक एक वो है, मतलब परफॉर्मिंग है, मतलब वो उसको आर्ट फॉर्म में आज हम लोग ला रहे हैं। दैट जब ये मूवमेंट शुरू हुआ, जब जैसे रावण का जो दहन होता है, मतलब आग जला करके, व्हाट इज दैट, इज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मिंग, मतलब एक इंस्टॉलेशन है। रावण का जो बड़ा मूर्ति बना करके उसको रस्सी लगा करके यदि दिया जाता है, एंड तुरंत उसको आग जला करके उसको खत्म कर दिया जाता है। द आर्ट फॉर्म इज बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, नथिंग एल्स इज देयर। पब्लिक खड़ा हुआ, एंजॉय हुआ। वो आज तक कितना 1000 साल से परंपरागत जो चल रहा है वो चीज़, मतलब जो भी है जितने साल से, तो ये नया बात नहीं है। हर चीज़ में देखोगे, हमारे झारखंड में पहाड़ का पूजा होता है, पेड़ का पूजा होता है। इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक पेड़ को चारों तरफ से घेर करके वो लोग धागा बांध करके जो प्रे करता है, देन कुछ भी जो देते हैं, इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ एक इंस्टॉलेशन और परफॉर्मिंग आर्ट। उसमें गाना होता है, अखड़ा होता है, बजाता है, नगड़ा बजता है। तो ये ओवरऑल ये चीज़ ठीक है, हम लोग ले रहे हैं कुछ, लेकिन उसका भीतर में जा करके स्टडी करके क्यों हो रहा है, व्हाई, व्हाट इज द एटमोस्फियर, whether that environment suits or not like that with that performing art, तो सब मिला करके अगर करें, ऐसा बात है ठीक है। अगर हम एक है ना कि हम अगर हैंगर को अगर तुम अपना अलमायरा में रखोगे तो इट्स ए टिपिकल हैंगर, वो हैंगर कपड़ा, मतलब इट विल बी काउंटेड। और ये हैंगर का कपड़ा लेकर के अगर एक म्यूजियम और गैलरी में टांग दोगे, इट विल बी फॉर्म ऑफ आर्ट। तो वो अलग बात है, बट डेप्थ में जितना भी जाओगे उतना ही अपने आप को। सर, तो आपका फिर मतलब आजकल के, बिकॉज आई थिंक अब हम, इट्स अ नाइस वे टू एंड द कॉन्वर्सेशन एंड आई वांट द ऑडियंस आल्सो टू आस्क यू क्वेश्चंस, बट सर आपका मतलब एक क्या एडवाइस, एक लेट्स से आप क्या कहोगे आज के यंग आर्टिस्ट को? How do we prepare ourselves for this journey? अरे यंग आर्टिस्ट को कुछ कहना नहीं है, बाप रे मारेगा। यंग आर्टिस्ट they are more matured, they are more conscious, they are more powerful, and उन लोग का IQ इतना हाई लेवल में चलता है, हम लोग का लेवल से बहुत ऊंचा है। So they should go in their according to their own tuning, ठीक है। अगर वो लोग चाहे तो कभी कभी पीछे झलक करके अगर देखे जो पीछे क्या है, माँ है, बाबा है, दादा है, दादी है, और मेरा पुराना घर है कि मिट्टी का घर था, कि वो घर में कौन था, वो घर का नीचे कौन है, वो पत्थर का घर है कि मिट्टी का घर है। अगर वो लोग चाहे देखने को लिए एक बार गांव जाए, अपना धीरे धीरे उसको बैक बटन दबाना पड़ेगा। मैं कहूँगा थोड़ा सा बैक बटन दबा करके थोड़ा पीछे हट के देखे, रूट्स को देखे, उस रूट्स को लेकर के उसका बाद अपना हाई फाई लेवल को जोड़ दे, तो अदरवाइज ना गैप हो जाता है बहुत बड़ा, और ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। उस रूट्स को अगर लेकर चले हम लोग तो चलता है। अभी बहुत कोई है जो दे आर वेरी मच कंसर्न, सीरियस, बहुत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम हो सकता है आई हैव नो आइडिया अबाउट द प्रेजेंट, हम तो आई मीन रांची, सो दिल्ली में तो बहुत आगे बढ़ गया, दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे जो भी है, बट थोड़ा सा यंग जनरेशन को पीछे रूट्स को थोड़ा सा मोड़ के देखना चाहिए एक बार, ये क्या था, अपना खानदान, अपना ट्रेडिशन जो भी है देख करके थोड़ा अपना नयापन को जोड़े, अपना जो इनोवेशन है, अपना जो हाई फाई आइडियाज़ है, फिलोसॉफी है,
थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस बहुत आगे चलता है आजकल। माने पोस्ट मॉडर्निस्टिक कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, थोड़ा पीछे को लेकर के चले तो इट विल बी मोर इफेक्टिव, मुझे लग रहा है। Thank you. Yes, let's we can leave it out to the audience now. Hi, I'm Satvik Garg. So I know Mandakini because we had the same teacher. Yeah, lovely work. I love it, and what I really love about it, because I've been personally kind of doing a lot of different mediums and materials, and lately I've been told, okay, you need to stick to one thing, and you said that you had such a kind of a love for sculpture in your in the starting of your career. So what I really want to, because you work a lot with lines, especially these drawings, and I really want to know what the connection or the transformation is from sculpture, which is a highly kind of emotive and dimensional work, whereas very flat and line drawings. थोड़ा सा हम ये करें जे दोनों ये कोई मेरा जंप नहीं है। आई यूज टू डू स्कल्पचर ऑल्सो रेगुलरली, ठीक है, इन डिफरेंट मीडियम, बट मे बी दैट पब्लिक आर्ट और इसमें ज़्यादा हम करते हैं उसमें स्कल्पचर को। तो कभी कभी मिट्टी मिल जाता है तो मिट्टी को लेकर हम प्ले करते हैं, विथ फॉर्म क्रिएट करते हैं। लेकिन एज ए सब्जेक्ट इन शांति निकेतन, बिकॉज स्कल्पचर मेरा नज़र से था, उस समय था, अभी इट वाज लाइक दैट, बिकॉज एज आई वाज फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, स्कल्पचर वाज मीडियम इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, स्कल्पचर लेकर पढ़ना मतलब हमको मॉडलिंग, कास्टिंग एंड एवरीथिंग, ब्रॉन्ज, वुड, एवरीथिंग वाज कॉस्टली देन पेंटिंग्स। तो पेंटिंग एक मीडियम जो है, देन आई कैन एनी टाइम आई कैन गेट इट डन। एंड उस समय एक भी था हम लोग को सेंस, अभी तो ठीक है, अलग बहुत एवेन्यूज़ बढ़ गया। उस समय था पेंटिंग्स में ज़्यादा जॉब मिलता था रादर देन स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग में। प्रिंट मेकिंग तो और एक हार्ड मीडियम था हम लोग को समय में, कि प्रिंट मेकिंग में बहुत कम स्टूडेंट जाते थे। सोमनाथ आने के बाद ज़्यादा, अभी प्रिंट मेकिंग में बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आनंदमय और सुशांत लोग आए हुए हैं, कि हम लोग का समय तो और कम था, बहुत कम स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे प्रिंट मेकिंग में, क्योंकि उस प्रिंट मेकिंग लेकर बहुत कम को जॉब मिलता था एज ए प्रोफेशनल जॉब। बट पेंटिंग में सबको कुछ ना कुछ मिल जाता था, ये एक कारण था, नो डाउट। लेकिन स्कल्पचर हम हमेशा करते गए, ऑलवेज आई यूज्ड टू डू। और स्कल्पचर का एक इसीलिए हमको अच्छा भी लगा, किंकरदा का जब पहला क्लास में फर्स्ट ईयर में तब थे, तो हम लोग मिट्टी बना करके कुछ बना रहे थे, ठीक है। सबका एक ये नेचर था उस समय, जो भी गर्ल्स बॉयज़ हम लोग एक साथ क्लास करते थे, तो फिगर बनाना। तो फिगर बनाने के बाद तब सर्वरिदा ये चीज़ बाद में हम लोग को नोटिस किया, देखो जो थोड़े से मोटे हैं, मतलब देखने में, मतलब द स्टूडेंट्स लोग, वो लोग ना अपना पतला पतला फिगर बना रहे हैं, और जो दुबले हैं वो मोटे मोटे फिगर बना रहे हैं। ये मैंने वो देखकर बोला, देखो सब फैक्ट, एक साइकोलॉजी, पता नहीं कल्पना ऐसा ही होगा, वो टैली ये हो जाता है। तो किंकरदा एक बार मॉडलिंग का एक क्लास में हम लोग को देखा था, हम लोग को मिट्टी ले करके, बागालदा करके थे उस समय हमारे जो असिस्टेंट थे, मतलब जो मिट्टी उट्टी सान देते थे, तो मिट्टी ले करके हम तुरंत बनाना शुरू कर दिया। वो किंकरदा बोले, लाओ ऐसा नहीं होता है, मिट्टी को ले करके पहले मिट्टी को हाथ में टच करो, यू जस्ट पकड़ो, फील करो मिट्टी को, मिट्टी टू बी फील इन दैट वे कि मिट्टी होलो माटी, माटी द मादर, माँ मतलब मादर, टी मतलब द मादर। माँ का साथ बच्चों का जो रिलेशन होता है, छोटा बच्चा एक माँ को लपेट करके जैसा मतलब रिलेशन बनता है, वो करते हैं ना छोटे बच्चे, एक माँ का गोद में बैठ करके इधर उधर लपेटते हैं, चकोटते हैं। लाइक दैट यू हैव टू फील द क्ले, फर्स्ट ऑफ ऑल फील करो, कुछ दिन अभी देखो उसको, फीलिंग करो, माँ जैसा फील आएगा, देन स्टार्ट वर्किंग। अपने आप माँ तुमको पेंटिंग वो स्कल्पचर बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सेंसिटिव एक लेसन था। मिट्टी को डोंट टेक इट इन दैट वे
कि मिट्टी लिया स्टार्ट कर दिया काम करना, नॉट लाइक दैट। पहले यू जस्ट फील इट, तब वो कितना बड़ा बात कहे थे उस समय, ये फीलिंग था वो एक। तो एनीवे वो इसीलिए हम एक वो 0 आवर वाला बात कर रहे हैं कि कोई भूल गए थे बोलने के लिए मिट्टी वाला रिलेशन सुनना चाहिए, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था किंकर द लोकस साहब, इसीलिए हम बोल दिए। तो क्या है कि ये एज स्कल्पचरल मतलब होने सब्जेक्ट लेने का मेरा मन था, लेकिन स्कल्पचर वाज माय सब्सिडियरी सब्जेक्ट। एक सब्सिडियरी सब्जेक्ट भी होता है पेंटिंग, एंड सेकंड सब्जेक्ट था स्कल्पचर। ओके, तो स्कल्पचर का जो करने का जो फीलिंग है वो पेंटिंग में मेरा आप देखोगे वो मेकिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एक है, क्योंकि उसमें भी हम पेस्ट करते हैं, कट करते हैं, उसको डायमेंशन देते हैं, तो किसी ना किसी तरह से ना वो क्रिएट हो ही रहा है। मतलब स्कल्पचरल एक टेक्टाइल फीलिंग्स इसमें, बिकॉज आई फील दैट राइस पेपर उसमें फील करके तब हम उसको पेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं से जुड़ गया मतलब दोनों मीडियम। In fact, when I was making the film and when I was seeing Sir work, Harinda work on his painting, the process also, like the way Harinda works, it is a very physical process. It's not that he has made diagrams or patterns. He'll cut the paper, he'll look at the paper, then he'll think. So it's not like, you know, like we've made a pattern, just print making में आप एक plate पे काम कर रहे हैं. Yeah. It is somehow he is trying to make his multiple mediums, whether it's paint, drawing and rice paper. But then उसमें आपके काम में मुझे भी यही लगा है कि आप एक स्कल्पचरल एलिमेंट, शायद इतनी बड़ी प्रिंट मेकिंग की एलिमेंट मुझे पर्सनली लगती है जब आप आपके जो बड़े वर्क्स प्रिंट मेकिंग है, आई फील लाइक दैट। मुझे जब मैं मे भी हो सकता है प्रिंट मेकिंग भी बनाए, वो तो अच्छा बात है। ऑल मीडियम झलक रहा है उसमें, बट आई डू नॉट नो प्रिंट मेकिंग का अगर तुम्हारा फीलिंग आ रहा है इज अ गुड, आई एम सक्सेस। That's a really good answer. But yeah, this sculptural element जो आप बात कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी पेंटिंग्स में वो वाली चीज़ डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल के मैं रिसेंटली एक स्कल्पचर बना रहा था, तो उसके अंदर it's about, जैसे मंदाकिनी said that you take that step back and you look at it again and again, and then we realize, okay, this needs it. And I saw that in the video as well when you were working with that paper and you were putting it here and then back there. And I saw it, and in a documentary or I think in a film I saw this, that when Da Vinci was making that really big horse, and there was this one nerve, or not a nerve, a vein which he was looking at, and then he got it wrong, and his workers, his assistants got it wrong, and he flipped out. And उसने बोला कि नहीं ये क्या कर रहे हो, can't you all see that this is so wrong, and he just stripped down the full sculpture. And I think I get that कि वो जो sculpture का element है वो painting में किस तरीके से आता है, and working your lines. स्कल्पचर के एलिमेंट पेंटिंग में और ड्राइंग्स के अंदर जिस तरीके से आता है, बिकॉज व्हाट आई फाइंड रियली इंटरेस्टिंग इन योर वर्क इज जो स्कल्पचर का एलिमेंट है वो बहुत प्लेन लाइन ड्राइंग्स में आ रहा है, टू सी सम ऑफ द ड्राइंग्स व्हिच आई कैन सी is a medium, difference between the both the medium, sculpture medium, painting medium. पेंटिंग में भी ड्राइंग है, ड्राइंग जैसा है, स्कल्पचर में भी ड्राइंग है, वी हैव टू फॉलो द ड्राइंग। स्कल्पचर का भी जो कंटूर लाइन होता है, स्कल्पचर का स्कल्पचरल जो मतलब जो भी है तुम फील करो, यू कैन मूव विद अ लाइन। स्कल्पचर का तो ऐसा नहीं, विदाउट लाइन यू कैन नॉट थिंक, इवन लाइन उसमें है, ड्राइंग है, ड्राइंग से उसमें अनलेस योर हैंड मूव्स एंड टेक्टाइल फीलिंग्स में अगर हाथ ठीक से मूव नहीं हो रहा है तो दैट विल नॉट बी सक्सेसफुल स्कल्पचर, आई थिंक सो। बिकॉज कहीं पर एक आप विजुअली अगर एक स्कल्पचर देख रहे हो, कहीं पर एक अटक गया, मतलब स्टिप हो गया और दूसरे तरफ नहीं जा रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट, इट्स अ डेड, और मे नॉट बी द अच्छा स्कल्पचर नहीं हो सकता। बट यू हैव टू माने विजुअली मूव करना स्कल्पचर में, एंड टेक्टाइल फीलिंग में भी मूव करना, दोनों चलता है उसमें, एंड साथ में इमोशन जो भी है यू कैन फील इट विथ योर इमोशन, देन ओनली द स्कल्पचर का जो फुल फॉर्म
मतलब enjoy कर पाते हैं ना ये. The time I spent with him, I mean, I can make a much longer film, but I tried the best to, let's say, within 15 minutes, give you the small glimpses into the way Harinda works in this very, you know, there's no rigidity. It's almost as though he's playing, and it's very childlike when he makes his works. So, thank you all.